when you give the input signal to the gates like A and B, two input signals, and it operates like it is an AND gate, and it operates and give the product like A dot B, means one output will be given like A dot B. And if you operates with another logic gate like it is OR gate, then it will produce A plus B. And another gate is NOT gate, only one input will be given to the NOT gate and one output will be produced. So these types of operations are done with the help of logic gates. Hello YouTube learners, my name is Kushal Sahu. Today I will discuss about logic gates. Welcome to my channel, The Science Teacher. Today we will discuss NOT gate, AND gate, OR gate, NAND gate or NOR gate. Okay, 5 types of gate we will discuss. The basic 3 gates are AND, OR and NOT, which we have discussed earlier. So today we will discuss about gate. In earlier classes we have discussed about logic operation. So what are gates? So gates are just electronic circuit made with diodes, made with resistors, made with transistors, okay, just to perform the input signal, just to convert the input signals to some output signal. So let us discuss about the first gate, that is NOT. NOT gate क्या है? NOT gate एक ऐसा गेट है जो परफॉर्म करता है इनपुट सिग्नल को अपोजिट करने के लिए, just to oppose the input signals, just to invert the input signals to A dash. How it converts? It converts from 0 to 1, 1 to 0, true to false and false to true, means oppose कर देता है, yes to no, no to yes. Okay, अब यहाँ पर इसे आप show कैसे करोगे? How will you show the NOT gate? You can show the NOT gate like this. This is representation of NOT gate. Representation of NOT. Okay, so let us discuss about the next gate, that is AND gate. This is NOT gate. Second one is AND gate. So for NOT gate we can input only one signal, but for AND gate we have to input 2 signals for one output. तो AND gate में क्या करते हैं हम लोग? Just we do the operation like this, multiplication of 2 elements. Multiplication in a way just आपको समझने के लिए, जैसे यहाँ पर x और y दो हैं, यहाँ पर 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ पर आप x और y दो तरीके का यहाँ पर आप इनपुट्स लेते हो और दोनों का आप यहाँ पर एंड करते हो, तो वो बन जाता है x डॉट वाई, ऐसे करके ये आउटपुट बनता है. तो हम x डॉट वाई को कैसे शो करेंगे, कैसे उसका कैलकुलेट करेंगे, चलिए इस ट्रूथ टेबल के थ्रू में देखते हैं. ट्रूथ टेबल के थ्रू में देखते हैं क्या होता है. यहाँ पर जस्ट आपको उसको मल्टीप्लाई करना होता है. 0 को 0 से अगर ये करोगे तो ये हो जाएगा 0 1 2 0 0 1 2 0 0 एंड 0 0 1 1 1. सो what it does, if any input signal is 0, it will provide 0. If both input signals are 1, then only it will provide 1. Means if anything becomes false from here, then the whole output will become false. And if anything becomes true here, then if both thing will becomes true here, then the output, only then the output will be true. So this is the representation of AND gate. Okay, so going to the next gate, that is OR gate. Next logic gate is OR gate. It is represented by this x and y, and this will be x dot y. And if there is a then that will be a dash. If there is x, then that will be x dash. Okay, OR gate, what is it does? ये करता क्या है कि ये ऑपरेशन करता है एडिशन का, प्लस करता है. कैसे करता है? जैसे यहाँ पर आपके पास 2 सिग्नल्स, ये रिप्रेजेंटेशन है इसका OR गेट का. इसमें क्या करता है, A और B अगर आपने 2 इनपुट्स लिए हुए हैं तो उसे ये आपस में
ऐड कर देगा, a प्लस बी कर देगा, ये जो आउटपुट आएगा उसका। इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं, हाउ डज इट लुक लाइक। जैसे हमारे पास a है और b है और उसे हम लोग a प्लस बी, इसमें हम लोग OR गेट का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो OR गेट का ऑपरेशन करने पर आप लोग क्या मिलेगा यहाँ पर, जैसे इसके 0 0 का 0 हो जाएगा, 0 1 का 1 हो जाएगा, 1 0 का भी 1 हो जाएगा एंड 1 1 का 1 हो जाएगा। ओके, सो व्हाट इट डज, यहाँ अगर आपने दोनों if both the input signals are false then only it will print false। अगर इनमें से कोई एक सा भी 1 है या फिर ट्रू है या फिर कुछ भी दोनों 1 है तो ये ट्रू यहाँ पर आपको शो करेगा और 1 आपको शो करेगा। तो दिस इज द OR गेट। अब बढ़ते हैं इन तीनों जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। बेसिक लॉजिक गेट्स का कॉम्बिनेशन से हम लोग कुछ नया गेट्स बनाते हैं, मतलब दोनों गेट्स को एक साथ यूज करके हम लोग कुछ नया गेट्स बनाते हैं और एंड और OR का यूज करके और नॉट का यूज करके ऐसे करके हम लोग कुछ नया गेट्स बनाते हैं। उस गेट्स का अलग अलग नाम है। जैसे पहला गेट्स है NAND गेट, इसमें से ये हो गया, इसे हम लिखते हैं सम मोर लॉजिक गेट्स, सम मोर लॉजिक गेट्स। इसका मैं आपको यहाँ पर ट्रूथ टेबल दिखाऊंगा। ओके, ये पहला है NAND गेट, NAND। देखिए यहाँ पर एंड है और नॉट है। NAND मतलब नॉट और एंड। एक ऐसा लॉजिक गेट, एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसमें आपको पहले ऑपरेशन करना है एंड का, उसके बाद उसमें लगा देना है नॉट। ठीक है, तो एंड के बाद अगर आप नॉट लगाते हो तो आपको ये जो लॉजिक गेट है कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसमें ऑपरेशन क्या क्या होंगे, जैसे x है y है तो सबसे पहले एंड वाला काम चलेगा। एंड वाला काम में क्या होगा, x डॉट y हो जाएगा और उसका और x डॉट y का और मतलब x डॉट y का डैश, और का क्या करते हैं, डैश लगा देते हैं। जस्ट वही करना है, मतलब उसका अपोजिट। अब इसका जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ, जैसे ये हो गया आपका एंड गेट। सबसे पहले NAND गेट को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एंड गेट करना पड़ता है और उसके बाद उसमें NAND गेट लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इनपुट x और y डालते हैं और x और y का इनपुट 0 0 डालते हैं, 0 1 डालते हैं, 1 0 डालते हैं और 1 1 डालते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर आप एंड गेट करोगे, एंड गेट के साथ अगर आप ऑपरेशन करते हो तो x डॉट y करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। मतलब आप मल्टीप्लिकेशन ऐसा सोचने के लिए एक आपको याद रहे उसके लिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1। अब यहाँ पर आपको NAND गेट लगाना है। NAND गेट लगाना है मतलब उसके बाद आपको नॉट लगाना है। जस्ट इसका नोट कर देना है आपको, मतलब x डॉट y का नॉट कर देना है, इसका उल्टा कर देना है। नॉट में हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। 0 का 1, 1 का 0 का 1, फिर 0 का 1, 1 का 0, सबका उल्टा कर देना है जस्ट आपको। तो ये बन गया आपका NAND गेट। NAND गेट में आपको ऐसे कुछ करना पड़ता है। अब इसी में आता है NOR गेट। उसमें NOR गेट में क्या करना होगा, एंड के जगह में आपको और लगा देना है। जैसे एंड है तो इसकी जगह में NOR हो गया, और यहाँ पर जो ऑपरेशन होगा x डॉट y नहीं होगा, x प्लस y हो जाएगा। ये का इसका कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे है कुछ। चलिए इसे मैं मिटा ही देता हूँ। ऐसे इसका ऑपरेशन है और इसमें लास्ट में नॉट गेट लगाना है। x और y है, यहाँ पर हम लोग x प्लस y कर देंगे और इसमें x प्लस y का डैश लगा देंगे। अब इसमें क्या हो रहा है कि एंड गेट के जगह में हम लोग लगा रहे हैं और, ठीक है, और यहाँ पर ये लग रहा है x प्लस y जो है उसका डैश। तो ये हो गया NAND और ये हो गया और ये हो गया NOR। ठीक है, और में हम लोग क्या करेंगे, 0 0 का 0 रहता है, बट इसका 0 1 का 1 हो जाता है और 1 0 का 1 हो जाता है। और यहाँ पर क्या होगा, इसमें 0 0 0 1, ठीक है ये, और इसमें 1 का 0 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा और 1 का 0, मतलब 3 टर्म 0 रहेंगे, 1 टर्म 1 रहेगा इसमें NOR गेट में। ठीक है, तो ऐसे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, NAND गेट, NOR गेट, OR गेट, लॉजिक गेट्स का नॉट गेट, एंड गेट और OR गेट। ठीक है,
इसमें हम लोग कुछ ऑपरेशंस करते हैं। चलिए बेसिक ऑपरेशंस, जैसे यहाँ पर x प्लस वाई ऐसे आ गया। इसे अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया, कोई क्वेश्चन में ऐसे बताता है कि आपके पास x प्लस वाई है, उसे आप रिप्रेजेंट कीजिए विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स के हेल्प में आप उसे रिप्रेजेंट करें। तो रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए ऑपरेशंस करना पड़ेगा। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करते हैं। सो वी हैव 3 क्वेश्चंस, वी हैव टू जस्ट राइट द लॉजिक गेट्स फॉर दिस ऑपरेशंस। सो यहाँ पर हमारे पास पहला जो है, उससे आपको मैं पहला वाला समझा देता हूँ, देन आफ्टर दैट यू कैन क्रिएट द लॉजिक गेट्स फ्रॉम योर साइड। ओके, तो पहला वाला मैं दिखाता हूँ सबको, a डॉट बी प्लस सी डैश। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो भी लिखा हुआ रहता है उनका सबसे पहले उनके अंदर में जितने वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को लिख देते हैं। सबसे पहले इसके अंदर में वेरिएबल है a, उसके बाद b, उसके बाद c। ये 3 तरह के यहाँ पर वेरिएबल्स हैं। इन तीनों तरह के वेरिएबल्स को हम लोग सबसे पहले लिख देंगे। उसको लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, हम इन्हें लॉजिक गेट्स के लिए स्टार्ट करेंगे, लॉजिक गेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले देखेंगे हम लोग यहाँ ब्रैकेट के अंदर का पार्ट, तो ये सी डैश है। ओके, सी डैश। तो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट देखिए, ब्रैकेट के अंदर में क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं, सी डैश। सबसे पहले सी के ऊपर में डैश लग रहा है, सी के ऊपर में डैश लग रहा है। व्हाट डज इट मीन, सी के ऊपर में नॉट का ऑपरेशन हो रहा है। तो सी को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नॉट गेट के साथ पास कराएंगे। सी को नॉट गेट से पास कराने पर व्हाट इट हैपेंड कि सी का हो गया डैश, मतलब हमें पहला वाला ये मिल गया। हम इसे आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब देखिए b प्लस सी का एडिशन करना है, तो b और c का एडिशन करना है। तो एडिशन के लिए हम लोग करते हैं और गेट लगाते हैं। तो b और c डैश का यहाँ पर और डैश लगाएंगे, इन दोनों का हम लोग लगा देंगे और यहाँ पर ये बन गया और का। अब यहाँ पर ये क्या मिला हमें, b प्लस सी डैश, b प्लस सी डैश का हमें यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है वो हमें मिल गया। अब हम यहाँ पर करेंगे a डॉट b प्लस सी डैश, ये जो है उसके बाद में हम लोग ये एक्सप्रेशन को करेंगे। तो इसे हम लोग लास्ट में ले आएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, जस्ट वी हैव टू पुट एंड गेट। एंड गेट क्यों हम लोग डालेंगे, जस्ट टू परफॉर्म द डॉट ऑपरेशन। a के साथ में डॉट लगाएंगे b प्लस सी को, जो हमें यहाँ पर मिलते जा रहा है उसे हम लोग लास्ट में लगाते जा रहे हैं। ये सबसे इजी वे है आपको समझने के लिए। मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा जस्ट ये वाला पार्ट। अब आगे हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट ये वाला जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको देता हूँ, आप बनाइए। तो उसी में चलिए इस वीडियो पॉज करके वो बनाते रहिए, मैं आपको आगे बताता हूँ। ओके, अब आगे मैं बताता हूँ इसका a डैश डॉट b प्लस सी। तो इसे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, a b c। 3 तरह के वेरिएबल्स हमारे पास। हमें ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट को सबसे पहले करना है, तो b और c के अंदर में एडिशन करेंगे। b और c को एडिशन करने के लिए हम लोग को यहाँ पर ये एडिशन वाला जो गेट है उसे लगाना पड़ेगा। उसके बाद में ये हमें परफॉर्म करके देगा b प्लस सी। उसके बाद में हम लोग a का नोट करेंगे। तो a का नोट करने के लिए हम लोग a को ऐसे नोट प्रेजेंट करेंगे, तो ये बन जाएगा a नोट। a नोट जब बन जाएगा तो उसके बाद में हम लोग इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब कि एंड गेट लगा देंगे। तो लास्ट में एंड गेट लगाने पर हमें मिल जाएगा a डॉट के a डैश के साथ में डॉट b प्लस सी। ये हमें लास्ट में एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वाला आपको मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट वाला कैसे होगा। नेक्स्ट वाला करने के लिए आपको जस्ट लिखना है x y और z, और z के साथ में हम लोग को नोट ऑपरेशन यूज करना है और y के साथ में हमें नोट ऑपरेशन यूज करना है। और जब y और x के साथ में नोट ऑपरेशन यूज हो गया तो हमें यहाँ पर मिल गया z डैश और y डैश। लेकिन y डैश के साथ में हम लोग x का ऑपरेशन करना है। सबसे पहले क्या करना है, एडिशन करना है। तो हम लोग इसके अंदर में ये लगाएंगे। उसके बाद में इन दोनों का हम लोग यहाँ पर लास्ट में एंड गेट लगा देंगे। तो उससे ये बन जाएगा आपका यहाँ पर x प्लस वाई डैश डॉट z डैश। ये है ऑपरेशन ऑफ बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा और आपको वो सॉल्व करने हैं। उस क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दे देता हूँ, आप खुद से उसे सॉल्व करो और खुद से सॉल्व करने की मतलब प्रैक्टिस करो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर x डैश डॉट b प्लस सी ये आपको करना है, ठीक है। और अब आगे नेक्स्ट वाला मैं बताता हूँ आपको, b डैश c प्लस d। यहाँ पर b डॉट c को हम यहाँ पर ऐसे करते हैं और लास्ट में d डालते हैं, ठीक है। अब आगे वाला नेक्स्ट ऑपरेशन
ये आप खुद से कर लोगे, मैं इतना आपको आगे वाला कुछ खुद से बना कर क्रिएट कर लो। चलिए अब इन्हें हम ट्रूथ टेबल में फॉर्म करने का कोशिश करते हैं। ट्रूथ टेबल में इन्हें लिखने का कोशिश करते हैं। हाउ डज इट लुक लाइक व्हेन वी राइट इन ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या करता है, जस्ट उसे वो दिखाता है कि 0 का 1 कहाँ चेंज हो रहा है, लास्ट में जो आंसर आ रहा है वो आंसर को दिखाता है, डायरेक्टली वो आंसर दिखा देता है। तो इसका हमने बनाया हुआ था ए, यहाँ बी और सी, इन तीनों में हम लोगों ने सी का नोट किया हुआ था और बी के साथ में हम लोगों ने इसका एडिशन किया हुआ था और लास्ट में हमने इसका एंड किया हुआ था। तो इसे हम लोग लॉजिक गेट्स में कैसे ये ट्रूथ टेबल में हम लोग इसे कैसे करेंगे फॉर्म। तो ट्रूथ टेबल के लिए हमें यहाँ पर चाहिए होगा 3 वेरिएबल्स, क्योंकि हमें ए और बी और सी ये तीनों हम लोगों को यहाँ चाहिए और उनके साथ में हम लोग ऑपरेशन करेंगे। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। ए बी और सी के साथ में हम लोग सबसे पहले सी डैश लगाएंगे, उसके बाद में क्योंकि हमने सी डैश लगाया, उसके बाद में सी और बी ये जो डैश है उन दोनों का एडिशन करेंगे, मतलब बी प्लस सी डैश। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में ए डॉट बी प्लस सी डैश, ऐसे हम लोग इसे लिखेंगे। जस्ट आप इसे समझिए। ओके, अब इसमें करते हैं, हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, यहाँ पर 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ये इतने सारे इसके अंदर में जो होंगे इतने सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, इतने सारे वेरिएबल्स इतने टाइप्स के हो सकते हैं। इसके जो इनपुट्स हैं वो इतने तरह के हो सकते हैं। जैसे ए के साथ में हमारे पास कितना इनपुट्स हो सकता है, ए के साथ में हमारा इतना इनपुट्स हो सकता है, ताकि हम लोग बी के साथ में, मतलब इतने डिफरेंट टाइप के इनपुट्स हो सकते हैं। 8 ऑपरेशंस, 8 इनपुट्स यहाँ पर डाल सकते हो आप। अब इसे हम लोग करते हैं सी डैश। सी का सारा एलिमेंट्स को हम लोग डैश कर देते हैं, मतलब 0 को 1 कर देते हैं, 1 को 0, 0 को 1, 1 को 0, 0 को 1, 1 को 0, 0 को 1, 1 को 0। अब हम b प्लस सी डैश करेंगे, मतलब b और c ये दोनों का हम लोग एडिशन करेंगे, मतलब ये दोनों के बीच में हम लोग और गेट परफॉर्म करेंगे। और गेट परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 0 और 1 है तो 1, 0 0 को 0, 1 1 को 1, मतलब जो 1 अगर एक बार भी आ गया तो हम उसे 1 लिख देते हैं। अब यहाँ पर 1 0 को 1 लिखेंगे, इसे भी 1 लिखेंगे, 0 0 को 0 लिखेंगे और 1 1 को 1 लिखेंगे, अब 1 0 को 1 लिखेंगे। अब नाउ व्हाट विल डू, यहाँ पर हम लोग ए के साथ में, इस ए के साथ में इस दोनों के बीच में हम लोग डॉट ऑपरेशन का यूज करेंगे, मीन्स एंड गेट का यूज करेंगे। अब एंड गेट का यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर दोनों 1 होगा देन इट विल 1। तो 0 के साथ 1 0, मतलब जितने 0 हैं, क्योंकि यहाँ सब 0 है तो ये यहाँ तक 0 जाएगा। 1 1 का 1, 1 0 का 0, फिर 1 1 का 1, फिर 1 1 का 1। मतलब अगर आप ये ऑपरेशन करते हो तो आपको सिर्फ 3 ही केसेस में 1 मिल सकते हैं, बाकी सारे केसेस में आपको 0 मिलेंगे। ये है इसका ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल को आपको परफॉर्म करने के लिए ये आपका सबसे मतलब कन्वीनियंस वे है, आपको पता चल जाएगा कि लास्ट में क्या हो रहा है। अब इसके लिए अगर हमें परफॉर्म करना है तो हमें सबसे पहले ए के साथ में डैश लगाना पड़ेगा, उसके साथ बी, उसके बाद बी और सी दोनों को एडिशन करके हमें उसके लास्ट में ए डॉट बी प्लस सी करना पड़ेगा। तो आई होप कि आप उसे कर पाओ। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, करके दिखाता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। बी प्लस सी करेंगे, उसके बाद ए के साथ में बी प्लस सी जो है उसका डैश कर देंगे। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सबको चेंज करना पड़ेगा, हमें इसे चेंज करके ए डैश बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग बी प्लस सी करेंगे, बी प्लस सी बस करेंगे। तो ये सारा तो बी प्लस सी डैश का था, तो इसे हम इरेज कर देते हैं और लास्ट में हम लोग उसे ऐसे परफॉर्म करेंगे एजेंट जो लास्ट का ऑपरेशन है उस तरीके से। तो इसे हम लोग परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले लॉजिक गेट्स को मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ए डैश था, उसके बाद बी प्लस सी था, बी प्लस सी था, उसके बाद में उन दोनों का एंड था। अब इसे हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर ए डैश लिखेंगे। ए डैश मतलब 0 का 1, 1 1 1 1, फिर 0 0 0 0, क्योंकि 1 वाला 0 हो गया और 0 वाला 1 हो गया। अब बी प्लस सी करेंगे, बी और सी को बीच में एडिशन करेंगे, 0 0 का 0 हो जाएगा, फिर 1 1 1, फिर 0 0 का 0 हो जाएगा, फिर 1 1 1। एडिशन में हम लोग यही करते हैं, पहले वाला ट्रूथ टेबल में आपको पता चल गया होगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में ये परफॉर्म करते हैं ए डैश बी प्लस सी। अब बी प्लस सी के साथ में ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों के बीच में हम लोग डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। दोनों के बीच में डॉट करने से ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 3 केसेस में आपको मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं,
1 1 1 और बाकी सारे केसेस में आपको 0 मिल रहे हैं। मतलब सिर्फ 3 केस यहाँ पर इस वाले ऑपरेशन के साथ में, इस वाले गेट्स के साथ में आपको सिर्फ 3 ही ऐसे इनपुट्स हो सकते हैं जिनका आउटपुट ट्रू होगा। ओके, क्योंकि ऑपरेशन ही ऐसा कुछ है। उसमें वो 3 इनपुट्स क्या हो सकते हैं, ए का 0, ए का 0, ए का 0, फिर बी का 0, बी का 1, फिर बी का 1 और सी का 0, सी का 1 0 और 1। मतलब अगर ए 0 रहे, बी भी 0 रहे और सी 1 रहे तो ये ऑपरेशन ट्रू शो करेगा। अगर ए 0 रहे, ए 1 रहे, ए 0 रहे, सी 0 रहे तो भी वो 1 शो करेगा। अगर ये 0, ये 1, ये 1 रहे तो भी शो करेगा।